ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید ظاہر حسین عابدی ابن سید شفیع محمد مرحوم و مرحومہ و مغفورہ ساجدہ بیگم بنت رحمت علی مرحوم و مرحوم و مغفور سید انصار حسین عابدی ابن سید ظاہر حسین عابدی مرحوم و مرحومہ و مغفورہ محترمہ کنیز بانو بنت سجاد حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس ایصال ثواب، یہ مجلس ترحیم میرے ایک دوست، عزیز دوست جناب اظہار صاحب کے والدین اور ان کے رشتہ داروں کہ ایصال ثواب کے لیے، ترویح روح کے لیے، ان کی قبر کو مزید روشن و منور کرنے کے لیے اور ان کے نام اعمال کو مزید وزنی کرنے کے لیے برگزار کی گئی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر اور کس ٹاپک پر یہ مجلس پڑھی جائے، تو ذہن میں بات یہ آئی کہ ایک بیٹے نے اپنے رشتہ داروں کے لیے اور خاص طور سے اپنے والدین کے لیے یہ مجلس برگزار کی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آج تذکرہ والدین کا کیا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل یہ مشہور و معروف آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں پروردگار عالم ماں باپ کی، والدین کی، پیرنٹس کی عظمت اور فضیلت کو بہت ہی کھلے لفظوں میں واضح کر کے بیان کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو تمہارے رب کا
یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبد الا اياه، کہ کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا، کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعبد الا اياه وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پروردگار عالم نے اپنی توحید کے فوراً بعد یہ اعلان کیا کہ وبالوالدین احسانا، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، مجھے اپنا رب مانو، مجھے اپنا معبود مانو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد اپنی رسالت کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے نبی کی نبوت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی توحید کا مسئلہ مکمل ہوا فوراً آواز دی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ توحید کے بعد اللہ اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ ایک ایسا انداز بیان ہے پروردگار کا جس سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ پروردگار ماں باپ کو کس قدر امپورٹنس اور اہمیت دے رہا ہے۔ اس کے بعد اعلان ہوتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما وکلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ بہت توجہ کیجئے، پروردگار کس طریقے سے ماں باپ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما وکلاہما، دیکھو تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بوڑھے ہو جائیں، عمر دراز ہو جائیں، تو فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ ماں باپ بڑے ہو جائیں اور کوئی بات ناگوار لگے تمہیں، اچھی نہ لگے ان کی، تو ری ایکشن ظاہر کرنے کے لیے، رد عمل ظاہر کرنے کے لیے اوف بھی نہ کہنا۔ اوہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، اوف یہ آپ نے کیا مطالبہ کر دیا، اوف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے چھوٹا اگر کوئی لفظ ہے تو وہ اف ہے، اور اللہ نے ماں باپ کے سلسلے میں اس پر بھی پابندی عائد کر دی۔ اگر اس سے بھی ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار اس لفظ کو بیان کرتا جو لفظ اف سے بھی زیادہ ہلکا ہے۔ ولا تقل لہما اف، دیکھو ماں باپ کے سامنے جاؤ اور ان سے ناراضگی کے طور پہ اف بھی نہ کرنا۔ ولا تنہرہما، اور دیکھو ماں باپ کو جھڑکنا نہیں، ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور یاد رکھو جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو نہایت ہی نرمی سے بات کرو۔ اللہ اکبر، پروردگار کتنا کریم ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے جیسے میں کریم ہوں تم بھی ماں باپ کے سامنے جاؤ تو کریم بن کر جاؤ۔ تمہارے لب و لہجے میں نرمی ہونا چاہیے، تمہارے لہجے میں سختی نہیں ہونا چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھو جب ماں باپ کے سامنے جاؤ نا تو تمہارے دونوں کندھے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ یعنی کیا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اکڑ کے نہیں جاؤ، بلکہ تمہارے دونوں شانے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ پروردگار یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟
یہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے آؤ تو تمہارے شانے جھکے ہوئے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، پروردگار رب حقیقی ہے اور ماں باپ رب مجازی ہیں۔ حقیقت میں تو رب وہی خدا ہے، لیکن اس نے بچوں کو دنیا میں لانے کے لیے ماں باپ کو ذریعہ قرار دیا، اس لیے ماں باپ ہیں رب مجازی۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے کتنا خوبصورت انتظام کیا، کہا دیکھو جب رب حقیقی کے سامنے آؤ تو اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دو، کیونکہ یہ رب حقیقی ہے، اور جب ماں باپ جو رب مجازی ہیں ان کے سامنے جب آؤ تو اپنے کندھے کو جھکا دو، اپنے دوش کو جھکا دو، اپنے کندھے کو خم کر دو۔ اللہ کے سامنے جاؤ تو سر کو جھکا دو، کیونکہ وہ رب حقیقی ہے۔ والدین کے سامنے جاؤ تو اپنے کندھے کو جھکا دو، کیونکہ وہ رب مجازی ہے۔ شاید میری بات آپ تک پہنچی ہوگی کہ پروردگار عالم کس قدر ماں باپ کا احترام کرنے کے لیے ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ کہ کیا کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس کے بعد کہو، اللہ سے کہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے پروردگار میرے باپ کو اسی طریقے سے میرے باپ پر رحم کر، میری ماں پر رحم کر کہ جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پر رحم کیا ہے۔ جو بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ماں باپ کون ہیں؟ اللہ کہتا ان کے لیے دعا کرو، یعنی جب بھی تمہارے ہاتھ بلند ہوں تو اپنے لیے بھی دعا کرو اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو، اور یہ کہو کہ پروردگار جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پر رحم کیا تھا، اب یہ اسیر خاک ہیں، اب یہ قبر کی منزلوں میں ہیں، لہذا پروردگار اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے ماں باپ نے ہم پر اپنی رحمتیں نچھاور کی تھیں، قربان کی تھیں، پروردگار اس وقت وہ تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، ان پر اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ آپ دیکھیں یہ پروردگار کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر ماں باپ تمہارے مر جائیں، زندہ رہیں تو قل لہما قولا کریما، نرمی سے بات کرو۔ زندہ رہیں تو ان کے سامنے جو ہے اپنے دونوں کندھوں کو جھکا دو، یعنی اکڑ کے نہیں جاؤ، جھک کر جاؤ، خاضع بن کر جاؤ، متواضع بن کر جاؤ، خاکی بن کر جاؤ، اکڑو نہیں، فرعون بن کر نہیں جاؤ، نمرود بن کر نہیں جاؤ۔ ماں باپ کے سامنے اس طریقے سے جاؤ کہ تمہارے دونوں دوش اور تمہارے دونوں کندھے جھکے ہوئے ہوں، تواضع اور انکساری کی مجسم تصویر بن جاؤ۔ ماں باپ کے سامنے جاؤ تو انکساری کا ایک نمونہ پیش کرو، اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب تو دنیا سے چلے گئے لہذا تم ماں باپ کو فراموش کر بیٹھو گے، نہیں، زندہ ہیں تو کندھے کو جھکاؤ، اور چلے جائیں تو پروردگار کی بارگاہ میں آ کر ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحمت نازل کر، ان پر اسی طریقے سے رحم کھا کہ جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پر رحم کھایا تھا۔ یاد رکھیے گا بہت بڑا میسج ہے اس کے اندر، بہت بڑا پیغام ہے اس آیت کے اندر۔ پروردگار کیا بتانا چاہتا ہے؟ دیکھو، ہم اگر عذاب نازل کرنا چاہیں تو بہت کم لوگ ہمارے عذاب سے محفوظ رہیں گے، لیکن رحمتی وسعت، ہماری رحمت جو ہے ہر چیز کے اوپر غالب ہے، ہماری رحمت جو ہے غالب ہے۔ اس رحمت کی بنیاد پر ہم تمہیں عذاب سے محفوظ کریں گے، اور یہی صفت رحم جو ہے ہم نے ماں باپ کو بھی دیا،
तुम पूरी रात उन्हें जगाते हो लेकिन वो उफ भी नहीं करते, तुम पूरी रात उनकी नींद खराब करते हो लेकिन उन्हें तकलीफ का एहसास नहीं होता। उन्हें तो बस एक ही तमन्ना है कि मेरा बच्चा जो है वो किसी तरीके से सो जाए, आराम करे, नरम बिस्तर पर वो चैन की नींद ले सके। माँ बाप की फिक्र यही हुआ करती है, माँ बाप की ख्वाहिश यही हुआ करती है। क्यों तुम इतनी अजियत करते हो, पूरी रात जगाते हो, लेकिन माँ बाप को ख़राब नहीं लगता? क्यों? इसलिए कि तुम्हारे लिए एक सिफत रहम है जो अल्लाह ने माँ बाप के दिलों में डाल दिया। वरना तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हैं कि इन्हें तुम्हें जो है समुंदर में ले जाकर बहा देना चाहिए था, जंगल में ले जाकर फेंक देना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ने हर माँ बाप के दिल में एक ऐसी सिफत रहम अता की है कि जिसकी वजह से वह हर तरह की मुसीबत और हर तरह की परेशानियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये है माँ बाप का मर्तबा, ये है वालिदैन का मर्तबा। अभी जल्दी ही फादर्स डे भी गुजरा है और पूरी दुनिया में इस टॉपिक पर गुफ्तगू हुई है, लोगों ने तकरीरें की हैं, पेपरों में आर्टिकल्स आए हैं फादर्स डे के ऊपर। लेकिन दीन मुबीन इस्लाम ने माँ बाप की जो अहमियत बयान की है वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। कुरान की आयत मैंने आपके सामने पेश की। आइए एक दो बातें और पेश करता हूँ। ये एक हदीस है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। एक हदीस माँ के सिलसिले में सुनिए और एक हदीस बाप के सिलसिले में सुनिए। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं, दुआउल वालिदे लिवलदिही का दुआ नबी ले उम्मते। बाप की दुआ बेटे के लिए ऐसे ही है जैसे नबी की दुआ उसकी उम्मत के लिए है। यानी क्या मकसद? यानी जब नबी उम्मत के लिए दुआ करता है तो जिस तरीके से नबी की दुआ उम्मत के लिए मुस्तजाब हो जाती है, कबूल हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से बाप की दुआ भी बेटे के हक़ में कबूल होती है। शायद पैगम्बर इस्लाम ये बताना चाहते हैं कि बच्चों देखो अपने माँ बाप का ख्याल रखना। क्यों? इसलिए कि ये जब दुआ करते हैं तो परवरदिगार इनकी दुआ को कबूल कर लेता है, और जब ये बद्दुआ करेंगे तो बद्दुआ भी कबूल करेगा। इसलिए इनकी दुआओं के सहारे, ये दुआ नहीं है बल्कि तरक्की पर जाने का एक खूबसूरत जीना है, एक सीढ़ी है। इसी जीने के ऊपर पैर रखकर तुम तरक्की की तरफ सऊद कर सकते हो, तरक्की की तरफ जा सकते हो। हाँ अजीज़ों, एक हदीस बाप के सिलसिले में पेश की और एक हदीस और सुनिए, और वो माँ के सिलसिले में है। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि दुआउल वालिदते युस्तजाबु लिवलदिहा, माँ की दुआ बेटे के हक़ में कबूल होती है, माँ की दुआ बेटे के हक़ में मुस्तजाब होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी माँ की कब्र पे गए थे तो यही तो कहा था ना, मादर गिरामी हुसैन के लिए दुआ करना। तो माँ की दुआ भी कबूल होती है, बाप की दुआ भी कबूल होती है। लेकिन जब माँ और बाप के दरमियान मुकायसा किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, तो माँ का दर्जा बुलंद है। और हम सब जानते हैं, आप सब की सैकड़ों हजारों बार सुनी हुई हदीस है कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के पैरों के नीचे हुआ करती है, बाप के पैर के नीचे नहीं होती। क्यों? बाप के पैर के नीचे जन्नत क्यों नहीं है? इसलिए कि माँ का दर्जा बाप से बुलंद है। और उसकी वजह यह है कि माँ की जो आगोश होती है
वो बेटे के लिए एक तरबियत गाह होती है, एक स्कूल है, एक मदरसा है, पहला स्कूल और पहला कॉलेज जो है वो क्या है? बच्चे के लिए माँ की आगोश है। माँ जैसी होगी बेटा भी वैसे ही होगा। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि माँ का जो मैग्नेट होता है, माँ का जो मकनातीस होता है, वो बच्चे को किस तरीके से खींच लिया करता है। एक नबी हैं, 1,24,000 नबियों में से अगर 5 नबी को सिलेक्ट करेंगे तो हज़रत नूह उनमें से एक होंगे। यानी उलुल अज़्म पैगम्बर जो 5 हैं उनमें से एक हज़रत नूह हैं। यूँ कहा जाए कि एक बहुत बड़ा मैदान, उसमें सारे अंबिया को जमा किया जाए और स्टेज के ऊपर 5 कुर्सी रखी जाए, तो इन 5 कुर्सी में से एक कुर्सी पर हज़रत नूह तशरीफ़ फरमा होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए अंबिया कितने बुलंद होते हैं, फिर अंबिया में जो रसूल हों वो कितने बुलंद हैं, फिर जो बड़े रसूल हों वो कितने बुलंद हैं, फिर जो उलुल अज़्म हैं वो कितने बुलंद हैं। हज़रत नूह इतने बुलंद हैं, लेकिन आप सबको सुना हुआ सैकड़ों बार का वाक़या है और इसे कुरान ने भी तफसील के साथ नकल किया कि जब कश्ती पे सवार होने की बात आई तो हमें 2 तरह का मकनातीस देखने को मिला, 2 तरह का मैग्नेट देखने को मिला। बच्चा जनाब नूह का बीच में है, नूह कश्ती की तरफ बुला रहे हैं और नूह की बीवी जो बेदीन है वो कश्ती से दूर कर रही है। एक तरफ हज़रत नूह पूरी ताकत लगाए हुए, या बुनैयर कब माना, ए मेरे लाल कश्ती में सवार हो जा, और उधर नूह की बेदीन ज़ौजा है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। तारीख क्या कहती है कि बच्चा बाप की तरफ नहीं गया बल्कि माँ की तरफ गया। फ़काना मिनल मुग़रक़ीन फ़हाला बैनहुमुल मौज, एक मौज जनाब नूह और बेटे के दरमियान हायल हुई और वो बेटा जो है डूब गया। किसकी तरफ गया बेटा? माँ की तरफ गया। क्यों? इसलिए कि माँ का मैग्नेट जो होता है इतना पावरफुल होता है कि हज़रत नूह भी जो है उसे अपनी कश्ती में सवार न कर सके। बहुत ही ख़तरनाक वादी से मैं गुज़रा हूँ, क्योंकि मुझे जनाब नूह की शख्सियत को भी बचाना है और एक मैसेज भी देना है। इसलिए माँ का जो दर्जा है वो बहुत ही बुलंद है। माँ को अरबी में उम कहते हैं। उम यानी मरकज़, जैसे मक्के को उम्मुल कुरा कहा जाता है, आबादियों का मरकज़, इसी तरीके से अरबी ज़बान में माँ को, मदर को उम कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि ख़ानदान में माँ बच्चों के लिए एक मरकज़ी किरदार रखती है। अल्लाहु अकबर। माँ का कैरेक्टर जो है एक मरकज़ी हुआ करता है, सेंटर हुआ करता है बच्चे के लिए। इसलिए माँ की अहमियत ज़्यादा है और जिसके रुतबे हैं सिवा, उसको सिवा मुश्किल है। जिसकी जिम्मेदारियाँ जितनी ज़्यादा होती हैं, जिसकी शख्सियत जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा हुआ करती है। लिहाजा अजीज़ों, ये कुछ बातें थीं, कुछ अराइज़ थे जो मैंने आपके सामने पेश किया। अभी फादर्स डे है, मैं चाहता यह हूँ कि एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करूँ कि आप अंदाज़ा लगाएं कि बाप का दिल कैसा होता है और बच्चे कैसे हुआ करते हैं। कहते हैं कि एक बेटा है, एक बाप है और एक बेटा है, और हाकिम ने दोनों को 100 कोड़े मारने की सज़ा दी। बाप और बेटे को बुलाया गया और जल्लाद से कहा पहले बाप को कोड़े लगाए जाएं, पहले बाप को ताशियाने लगाए जाएं। बाप को बेटे के सामने लिटा दिया गया और उसे
100 ताजियाने मारे गए, कहते हैं कि एक मर्तबा भी आह नहीं किया। बाप कोड़े खाता रहा, उसकी कमर के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, लेकिन बाप है कि जो खामोश है। और जब 100 कोड़े उसको मार लिए गए तो फिर बेटे को लेटाया गया। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि बाप का दिल कैसा हुआ करता है बेटे के हक़ में। क्योंकि फादर्स डे गुजरा है, इस मुनासबत से मैं चाहता हूँ कि वाक़या आपके सामने पेश करूँ। और जब बाप को ताज़ियाने मार लिए गए तो फिर बेटे को लेटाया गया। जल्लाद ताज़ियाना लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही जल्लाद ने बेटे को पहला ताज़ियाना मारा, ताज़ियाना तो लगा बेटे को, लेकिन चीख की आवाज़ बुलंद हुई बाप की। हाकिम परेशान हो गया कि इसको 100 ताज़ियाने मारे गए, इसने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, ये चीखा नहीं, इसने फरियाद नहीं की। लेकिन जैसे ही बेटे को पहला कोड़ा मारा गया, पहला ताज़ियाना मारा गया, इसकी आवाज़ बुलंद हो गई, इसकी फरियाद बुलंद हो गई। जल्लाद को इशारा किया, रुक जाओ, ज़रा मालूम तो करें बात क्या है। हाकिम ने बाप से पूछा, तुम्हें जब 100 का कोड़े मारे गए तो तुमने फरियाद नहीं की, लेकिन जैसे ही बेटे को एक कोड़ा मारा तुम्हारी फरियाद बुलंद हो गई। बात क्या है, ज़रा मुझे बताओ। क्या खूबसूरत बात कही। बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी। बस इसको पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑनलाइन मजलिस 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तूलानी मजलिस नहीं होनी चाहिए। हाकिम ने बाप से पूछा, जैसे ही पहला ताज़ियाना तुम्हारे बेटे के कमर पे पड़ा, तुम्हारी फरियाद निकल गई, चीख निकल गई, बात क्या है, कुछ तो बताओ। उसने कहा, हाकिम, तुमने जब मुझे 100 ताज़ियाने मारे तो ये 100 ताज़ियाने मेरे जिस्म पे लगे, और जब तुमने पहला ताज़ियाना मेरे बेटे को मारा तो वो मेरे दिल पे लगा। याद रखो, वो जख्म, वो चोट जो जिस्म पे लगे वो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन वो चोट जो दिल पे लगे वो बर्दाश्त नहीं हो सकती है। यानी जो रिश्ता बाप और बेटे का हुआ करता है वो कल्बी है, वो दिल का रिश्ता है। यानी बाप जब बेटे को खुश देखता है तो वो खुश होता है, और बाप जब बेटे को तकलीफ में देखता है तो वो उसे भी तकलीफ पहुंचाती है, बेटे की तकलीफ। हाँ अजीज़ों, बस मैंने आपको बहुत ज़हमत दी और एक मंज़र आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। बाप का तस्करा आ गया है और बेटे का तस्करा आ गया है, तो जब भी बाप और बेटे का तस्करा होगा तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो नाम आता है वह इमाम हुसैन का और हज़रत अली अकबर का। बहुत मुख्तसर करके मैं गुफ्तगू पेश करूँगा। आज़ादारों, इमाम हुसैन और अली अकबर का रिश्ता हम सब जानते हैं कैसा था। इमाम हुसैन ने जब अली अकबर को रुखसत किया है तो अपने दोनों हाथों को आसमान की जानिब बुलंद किया और आवाज़ दी, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम, ए मेरे परवरदिगार, तू गवाह रहना कि मैं अब उसको भेज रहा हूँ मख्तल में और मैदान में और जामे शहादत नोश करने के लिए कि जो तेरे नबी से खल्कन खुल्कन मंतिकन बिल्कुल मुशाबे था, शबी है रसूल को भेज रहा हूँ। अली अकबर शबी है पैगंबर है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली अकबर शबी है पैगंबर हैं। और जब वो मख्तल में गए हैं, मुझे सिर्फ एक जुमला नक़ल करना है अजीज़ों।
कैसे हुसैन ने भेजा होगा अली अकबर को, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, लेकिन इस वाक़े ने ये बताया कि हुसैन ने जब अली अकबर को भेजा है तो इमाम हुसैन की कैफियत क्या थी। अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, मख्तल में चले, कुछ दूर अली अकबर चले थे कि अली अकबर को ये एहसास हुआ कि कोई है जो अली अकबर के पीछे पीछे आ रहा है और वो जमीन पर गिर गया है। अब जो अली अकबर ने मुड़ कर देखा तो कोई और नहीं, अली अकबर का बाबा हुसैन है जो जमीन करबला पर गिरा पड़ा हुआ है। एक मर्तबा अली अकबर घोड़े से उतरे, आवाज दी, बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था, आपने तो खुदा हाफिज कर दिया था, आप फिर क्यों मेरे साथ साथ आ गए। एक जुमला कहा, ए बेटा अली अकबर, तुम्हें क्या मालूम कि एक बाप के लिए जवान बेटे की अहमियत क्या होती है। जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज, लेकिन याद रखो जब तक हमारा तुम्हारा सामना रहे मुड़ मुड़ कर अपने बाबा हुसैन को देखते रहना, मुड़ मुड़ कर अपने बाबा हुसैन को देखते रहना। अली अकबर मैदान में गए, हाँ अज़ादारो मैदान में गए और उसके बाद जंग की, फिर वापस आए और आने के बाद एक जुमला कहा कि मेरे बाबा अल अतशो क़द क़तलनी, प्यास मुझे मारे डाल रही है। आप जानते हैं ना, जब इंसान कोई संगीन काम करता है तो प्यास में और इजाफा हो जाता है। अली अकबर मुसलसल जंग करके इमाम हुसैन की खिदमत में आए। इमाम हुसैन ने कहा, शाबाश मेरे लाल, तुमने आज जो जंग की है, यकीन जानो अली अकबर तुमने अपने दादा की याद ताज़ा कर दी। अजब नहीं। अली अकबर ने कहा, बाबा तो क्या आप मुझे इनाम न देंगे, आप मुझे जायज़ा न देंगे, आप मुझे इनाम न देंगे। ए बाबा मैं प्यासा हूँ, बाबा प्यास बड़ी जान ले रही है। इमाम हुसैन ने अपनी ज़बान को अली अकबर के दहन में डाल दिया। गोया जैसे ही ज़बान को डाला, अली असगर ने कहा, बाबा आपकी ज़बान, अली अकबर ने कहा, बाबा आपकी ज़बान में तो मुझसे ज़्यादा कांटे पड़े हुए हैं, अजरकुम अल्लाह। कहा, जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल, वो देखो मैदान में तुम्हारे दादा, हमारे जद जामे कौसर लिए हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अली अकबर मैदान में गए, एक जालिम ने इस तरीके से छुप कर एक कमीनगाह से आपके सीने पर नेज़ा मारा। अली अकबर संभल न सके, जमीन करबला पर आए, जमीन करबला पर आए, हाँ आज़ादारो जमीन करबला पर आए। आवाज दी, बाबा हुसैन एक मर्तबा मैदान की तरफ चले, आवाज दी, आईना आईना अली, अली कहाँ हो, मुझे आवाज दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, जब कोई बेटा दुनिया से रुखसत होता है तो जैसे उसकी उस बाप के आंखों का नूर चला जाए। ये बात हमें करबला में मालूम हुई। इमाम हुसैन अली अकबर के करीब पहुंचे, अली अकबर के करीब पहुंचे, देखा जवान है जो एड़ियां रगड़ रहा है और अपने सीने पर हाथ रखे हुए है। इमाम हुसैन ने एक सवाल किया, ए मेरे लाल अली अकबर, तुम आखिर सीने के ऊपर हाथ क्यों रखे हुए हो? कहा, बाबा सीने पे नेज़े की अनी है जो सीने के अंदर चली गई है। बस अज़ादारो, इमाम हुसैन ने एक मर्तबा आस्तीन को उल्टा नजफ की तरफ रुख करके आवाज दी, ए बाबा दर खैबर का उखाड़ना बड़ा आसान था, लेकिन जवान के सीने से नेज़े का फल निकालना बड़ा मुश्किल काम है। हुसैन की मदद कीजिए। जैसे ही नेज़े के फल को निकाला, हाँ आज़ादारो, नेज़े के साथ साथ अली अकबर का जिगर बाहर आ गया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि।